फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है, होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ वेबिनार कंडक्टेड बाय chshelpforum.com. ये वेबसाइट is related specifically to issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the CHS members. It has very simple language articles, draft of applications, पुराने जो हमारे वेबिनार्स हुए हैं वीडियोस उसके अपलोडेड हैं और कई चीजें हम धीरे धीरे अपलोड करते जा रहे हैं. We also have a WhatsApp group only for housing societies. Anybody wishing to join me, send me a private WhatsApp message. My number is 9820174108. I'll be putting this number in the chat box also. फ्रेंड्स, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्पीकर को इंटरप्ट करे बगैर ध्यान से सुनिए. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए. चैट बॉक्स के जो क्वेश्चन है पहले वो आंसर करेंगे. ओके. On behalf of all the participants, I invite today's speaker, Advocate Fatima Fauzdar. फातिमा जी ऑलरेडी कई बार हमारे वेबिनार्स में आ चुकी है. She has spoken on various issues. आज वो जो इश्यूज रेज करेंगे और नॉलेज हमें जो देंगे that is related to bachelor tenants. Topic is bachelor tenants, society not allowing and legal actions thereon. आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार सोसाइटीज में ये एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि बैचलर टेनेंट को अलाउ नहीं करा जाएगा और कुल फैमिलीज को अलाउ करा जाएगा. तो ये गैर कानूनी है, टोटली इलीगल है. उसे समझना जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई बैचलर है, उसने कोई फ्लैट खरीद के ले लिया हुआ है और वो अकेला रह रहा है, तो सोसाइटी ये नहीं बोल सकती है कि नहीं बैचलर टेनेंट है, अब बैचलर ओनर है, इसके लिए हम उसको अलाउ नहीं करेंगे. तो सिमिलरली टेनेंसी को भी आप अलाउ करना गैर कानूनी है. So now on behalf of all the participants, I invite today's speaker to speak on it, to speak on today's topic and share the knowledge with all of us. Over to you, Fatima ma'am. Please join in and start. Thank you, ma'am. Yes. Good evening, sir. Thank you so much, and a very good evening to all the participants. Well, from the area I'm speaking, the weather is very bad, very cold, and it's raining as well, slight drizzling. So, and I'm sure in most parts of Mumbai, it must be hot as usual. So, welcome you all back to the Saturday session. As Hemant sir just few seconds back mentions, today's topic what we'll be speaking on is bachelor tenants, and they are being prohibited in societies. Means any person, whether a male or a female, if that person is a bachelor or unmarried, they are not permitted as tenants in societies because some societies draw up their own resolutions. The managing committee are finicky. They come up with their own resolutions and they pass a resolution in the general body meeting that the society will not allow tenants who are bachelors. So the flat owners or the members who actually own the flat, they may be having some of their family friends who must be having some person whom they wanted to let. But because of these resolutions, they are unable to let the flat. So this is not only a loss of income to them, but also it is like something that is, forced upon them. Because the Maharashtra Cooperative Societies Act nowhere mentions or nor in the bylaws anywhere is it mentioned that you cannot have bachelor as tenants. And even a constitution, the constitution gives every citizen of India and non-citizens the fundamental right under the Indian constitution is to stay or reside anywhere in India except in prohibited areas. Prohibited areas means sensitive areas like the border areas, or you can say the army areas, the cantonment areas, which are sensitive areas, taking into consideration the security of our country and the area. So mostly in industrial cities like Mumbai, Pune, you find this concept of prohibiting and banning of tenants staying in the cooperative housing societies, which causes discontent among the members
and leading to the failure of cooperative movement in itself. Because as a resident in a democratic country, you have a right to reside anywhere in the country unless you're not doing some any illegal activity. That is prohibited. But you cannot stop a person or having tenancy rights somewhere when he's following all the other protocols of the law and the Maharashtra Cooperative Societies Act. Now there is no, as I just mentioned, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, आई एम सॉरी, मुझे हिंदी में भी बात करनी है, आई मिस्ड आउट ऑन दैट, तो आई जस्ट रिपीट इन शॉर्ट कि हम लोग को एज इंडियन सिटीजन, हम नागरिक है इस देश के, इस सिटी के या कोई भी जगह के, तो हम लोग अपनी मर्जी से, अगर हम लोग अनमैरिड है, बैचलर है, तो वो इंसान कहीं भी रह सकता है. सपोज एक लेडी है या एक लड़की है जो अपने होम टाउन से आ जाती है, अपने जॉब के प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो जाती है, इंटरव्यू हो जाता है, पर्क्स अच्छी है, सैलरी अच्छी है, लेकिन उसका ड्रॉबैक होता है कि उसे अकोमोडेशन ही नहीं मिलता है. अकोमोडेशन क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज शी इज सिंगल, बिकॉज शी इज अ सिंगल लेडी, और इफ ही इज अ मैन बिकॉज ही इज अ बैचलर. अभी इंसान चाहेगा कि मैं सिटी में हम नए हैं तो कोई भी जगह ऐसी ढूंढे जो मेरे वर्क प्लेस से नजदीक हो, ताकि आई डोंट हैव टू ट्रैवल मच, एंड एज आई एम नॉट वेल वर्स विद द एरियाज ऑफ द सिटी, आई नो आई मे गेट लॉस समवेयर, बिकॉज यूजुअली अ पर्सन कमिंग फर्स्ट टाइम, उसको एक डर रहता है, बाबा मैं कहीं खो ना जाऊं. तो इन ऑर्डर टू बी सेफ, अ पर्सन वांट्स टू फाइंड अकोमोडेशन क्लोजेस्ट टू हिज और हर वर्क प्लेस. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, सोसाइटी के बाहर बड़ा बोर्ड लगा है, bachelors and single ladies or women not allowed as tenants. तो that person is taken aback कि चलो बाबा अभी यहाँ तो हमको रहने को मिलने वाला नहीं है. तो इस तरह से वो इंसान की जो खोज होती है घर की, वो कभी खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज फूलिश डिसीजन बाय द मैनेजिंग कमिटी. नाउ अगर MCS एक्ट देखें हम लोग, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जो प्रोहिबिट करता है किसी को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने से, अनलेस एंड अनटिल दे फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ लॉ. उन्होंने परमिशन लिया है लैंडलॉर्ड से, बाकायदा लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट रजिस्टर किया है, पुलिस वेरिफिकेशन किया है, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, सब कुछ हो गया है. तो देयर शुड बी नो हार्म कि बाबा उनको क्यों रिस्ट्रिक्ट करें हम. लेकिन इसके बावजूद भी कोई सोसाइटीज ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना देती है कि बस देना ही नहीं है बैचलर्स. ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदमाशी करते हैं, लेट नाइट पार्टीज करते हैं, ये सब भी आए हैं पेपर्स में भी, आप लोगों ने भी काफी सारे न्यूज़ें सुनी होगी कि बैचलर पार्टी एंड द नेक्स्ट डोर सोसाइटी हैड टू गो एंड कंप्लेन अबाउट दैट सोसाइटी. तो ठीक है, दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर देयर, लेकिन इसके लिए वो सोसाइटी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. I'm sorry. Please excuse me, I've got a bad throat because of the weather. उसके लिए माफी चाहते हैं. तो उसके लिए वो लोग एक्शन ले सकते हैं. वो लोग जब टेनेंसी राइट्स बनाते हैं, जब लीव लाइसेंस अग्रीमेंट बनाते हैं, तब उसमें वो लोग एक क्लॉज तो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं. हम लोग को कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है. यूजुअली पीपल क्या करते हैं, किसी और का फ्लैट का लीज एंड लाइसेंस अग्रीमेंट लेते हैं, उसको अपने टेनेंट के लिए कॉपी पेस्ट करके बनवा देते हैं, क्योंकि उनको लीगल चार्जेस वगैरह देने नहीं होते. तो ये गलती मत कीजिए. जो आपको सूट होता है, जो आपके सोसाइटी के बायलॉज को सूट करता है, उस हिसाब से आप अपना लीव और लाइसेंस अग्रीमेंट बनाइए जो आपको सूट करता है, क्योंकि आप मेंबर है, आप ओनर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. क्योंकि एंड में कंप्लेंट किसकी होती है? ओनर की होती है. तो ओनर शुड सेफगार्ड हिज राइट फर्स्ट, देन द थिंक अबाउट द सोसाइटी एज वेल, और फिर आगे बढ़ना चाहिए. तो लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट भी ऐसे ड्राफ्ट करिए कि जो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. तो उसमें आप एक क्लॉज डाल सकते हैं कि बाबा आफ्टर 10 o'clock any outsider friend of yours should not stay, or there should be no noise that should disturb the other residents of the society. तो अगर ये क्लॉज मेंशन्ड है तो तुम टेनेंट के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं. अब जब जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो इसमें वो लोग इलीगल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं जो टेनेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते. तो रेजोल्यूशन बायलॉज में भी वो लोग क्या करते हैं, एक क्लॉज ऐसा डाल देते हैं कि एज पर द बायलॉज अमेंडेड, अपनी सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से
ये अलाउड नहीं है करके कि हम लोग टेनेंट जो बैचलर है या सिंगल लेडी है उसको नहीं रख सकते हैं। हालांकि जनरल बॉडी कमिटी हैज नो लीगल एंटिटी, ये कोई लीगल बॉडी नहीं है, ये बॉडी मेंबर्स ही बनाते हैं, अपने में से चुनते हैं लोगों को, ताकि वो एक ट्रस्ट बनाते हैं कुछ लोगों के अंदर। हर कोई अगर मैनेजमेंट करने को जाएगा तो वो कोऑपरेटिव मूवमेंट फेल हो जाएगा। तो वो 100 लोगों में से या 250 लोगों में से या 500 लोगों में से एक सिलेक्टेड टीम सिलेक्ट करते हैं और उनको अथॉरिटी देते हैं, अपना विश्वास देते हैं कि आप हमारी तरफ से हमारे प्रतिनिधि बन के वहां पे बैठिए और ये सोसाइटी चलाइए और ये चीजें जो है, ताकि बाकी लोग भी सुकून से रह सके। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड रिजल्ट टोटल क्योस। क्योंकि एक बार पावर में आने के बाद मैनेजिंग कमिटी क्या करती है, दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग नॉट ओनली द अदर पीपल हु कम टू स्टे देयर बट इवन द वेरी ओनर्स ऑफ द सोसाइटी। और ऐसा कोई लेजिस्लेशन भी नहीं है हम लोग के इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ में जो टेनेंसी को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब अभी जब वो रेजोल्यूशन, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, कुछ भी रेजोल्यूशन में वो लोग लिख देते हैं, इग्नोरेंट होते हैं अपने रेजोल्यूशनों से जो बनाते हैं कि फॉर कंपल्सरी, जस्ट मिनट, सेल ऑफ फ्लैट इन केस द ओनर बिकम्स अ विडो। मतलब इसमें लिखा है कि अभी ये जो हम लोग टेनेंसी की बात कर रहे हैं उसके साथ वो लोग क्या करते हैं, कोई लेडी का हस्बैंड सपोज कोई मेंबर है, दैट मेंबर डाइज, तो दो दैट विडो को वो फ्लैट सेल करने के लिए भी उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको फ्लैट सेल करने के लिए भी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं जल्दी से। दे क्रिएट कॉम्प्लिकेशन, इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग विद देम दे मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द मेंबर्स। या फिर जबरदस्ती करते हैं कि बस आप फ्लैट भेज दो, अगर लेडी विडो है अकेली है तो उसको बोलेंगे नहीं नहीं आप फ्लैट भेज दो करके उसको फोर्स करते। तो ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन। द कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोसाइटी एक्ट इज फॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर्स, द मेंबर्स, और इवन द गवर्नमेंट शुड लुक एट ऑल दीज एस्पेक्ट, शुड कंसिडर ऑल दिस फ्रेमवर्क। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, रजिस्ट्रार को उसके पैसे मिल जाते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद बस आप रिटर्न्स फाइल करते रहो, अपना बैलेंस शीट फाइल कर दो। ऐसा नहीं होना, देयर हैज टू बी अ थorough check on the society's functioning even by the government to ensure that the residents are not harassed. Now the common services and amenities. The cooperative society is classified as a service provider. Service provider under section 2(1)(m) small 3 and 4 of the Consumer Protection Act. तो अगर लॉ के मायने से देखे जाए तो service provider society become the service provider and hence it is covered under the Consumer Protection Act as well. And Consumer Protection Act is a central law, ये कोई स्टेट लॉ नहीं है, विच इज री इन्फोर्स। काफी सारे जजमेंट्स भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स के जो सोसाइटी के मेंबर्स के फेवर में आई है, जो सोसाइटी का हैरेसमेंट फेस करते हैं। Now the sole responsibility legal liability of a cooperative society is to provide common services and amenities. It is the sole responsibility. प्लीज आप ध्यान से देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है वो कॉमन एमिनिटीज और सर्विसेज और जो सेवा होती है वो प्रोवाइड करनी है अपने मेंबर को अंडर सेक्शन 216 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, which also lawfully means continuing common services and amenities to the tenant of his members, which is more so specifically in lieu of 10% of non-occupancy charges that the society has mandatory collected from his original members. इसका मतलब है आपका फ्लैट है, आपने वो फ्लैट किसी टेनेंट को रेंट पे दे दिया है, तो सोसाइटी आपसे 10% नॉन ऑक्यूपेशन चार्जेस क्यों लेती है? क्योंकि आप ओनर होते हुए आप वहां रह नहीं रहे हो। तो आप अगर वहां नहीं रह रहे हो, आप 10% चार्जेस दे रहे हो, तो सोसाइटी का कर्तव्य बनता है कि वो कॉमन सर्विसेज और एमिनिटीज टेनेंट को भी प्रोवाइड करे। दे हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द टेनेंट एज वेल। द टेनेंट यूजुअली enjoys all the rights of the tenancy of the owner, possession of the flat,
not as a owner, but as a tenant, as enjoyed by the member of the society, except the tenant will not have the ownership right. but बाकी जो सेवाएं है, जो सर्विसेज है, वो टेनेंट दे सकता है. लॉ के अंदर टेनेंट इक्वल्स टू अ नॉमिनल मेंबर. A licensed tenant of a flat owner or a society member is classified as a nominal member under bylaw number 20, who by legal default derives irrefutable right to reside in a cooperating housing membership flat under bylaw number 24 in bracket B. Abhi nominal membership is granted to each of the individual bachelor tenants by virtue of ₹100 as nominal membership fees under the cooperative registrar approved bylaws of the society. तो जो bylaws societies के जब बनते हैं, उसके approval में registrar को ₹100 का जो membership fees pay करके वो tenant becomes a member for time being, for the period of the tenancy that the member is, that tenant is there in that society. Now, the tenant definitely and lawfully derives all the rights to use the services and amenities that is available to the original member. This includes the parking, gym, clubhouse, swimming pool facilities. अगर वो फ्लैट में ये सब facilities है, तो definitely ये सब facilities भी वो tenant enjoy कर सकता है. They cannot deprive these facilities to the tenant just because he's staying on rent. Even if any resolution is passed in a general body meeting and a violation on can be lead to prosecution of the society under the consumer court. Now the society is not the owner of the flat. अब society is not the owner of the flat, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. The society does not own the member's flat. ओनरशिप लाइज विद द मेंबर. अगर 50 फ्लैट की सोसाइटी है तो 50 ओनर है. सोसाइटी वो हर 50 फ्लैट का ओनर नहीं होता है. द सोसाइटी कैन नॉट हैव अ से whatsoever, not decide on the type of tenants that could be allowed to stay in the society. It is the sole discretionary owner to rent out his property on rent, lease under the appropriate terms and conditions prescribed by the law. Only the flat owner cannot decide the type of tenants he wants to rent out his premises, but within the parameters of law can rent out his premises for some. He cannot rent out for commercial or illegal activities. मतलब अभी सपोज हम एक फ्लैट ओनर है तो हम इलीगल एक्टिविटीज है, जैसा गैमलिंग डेन खोलना है, तो उसके लिए हम हमारा फ्लैट ओनरशिप पे नहीं दे सकते. तो इलीगल एक्टिविटीज आर डेफिनेटली प्रोहिबिटेड. और रेसिडेंशियल में आप कमर्शियल यूज के लिए भी फ्लैट रेंट पे नहीं दे सकते. और अगर सोसाइटी कैन नॉट रिफ्यूज अ फ्लैट ओनर फ्रॉम कीपिंग अ टेनेंट इवन इफ द मेंबर इज अ डिफॉल्टर और वॉट एवर. नाउ सपोज अ मेंबर हैज नॉट पेड हिज मेंटेनेंस चार्जेस, तो सोसाइटी ऐसा बोल नहीं सकता आपने की मेंटेनेंस चार्जेस भरे नहीं है तो आप टेनेंट नहीं रख सकते. दिस इज इलीगल. The maximum the society can do is to inform the local police station about any illegal activity being carried out in the member's flat or by the member and take action against the member, but they cannot restrict the member from renting out his flat. इस टॉपिक के ऊपर हम एक लाइव एग्जांपल देते हैं जो हमारी फ्रेंड के साथ हुआ है. उनका फ्लैट रेंट पे था, उनका कुछ वाटर चार्जेस के ऊपर इशू चल रहा था, तो वो मेंबर ने मेंटेनेंस क्लियर किया था लेकिन वो वाटर चार्जेस सोसाइटी को पे नहीं किए थे. और उस बीच वो जो टेनेंट था उनको दूसरी जगह पे फ्लैट रेंट पे मिल गया जो उनका फ्रेंड का फ्लैट था. तो वहाँ पे उनको रेंट बहुत ही कम था तो वो शिफ्ट करना चाहते थे. इधर का उनका लीज एंड लाइसेंस अग्रीमेंट एक्सपायर हो गया था, तो वो फ्लैट खाली कर चुके, सब कुछ हो गया. उनका 1.5 महीने का बच्चा था. 1.5 महीने के बच्चे के लिए सोसाइटी ने न दूध लाने दिया, न ही वो ट्रक जो अंदर आ रहा था सामान लेके जाने के लिए जो पैक किया हुआ था, बिकॉज सामान पैक कर चुके थे, वो बच्चे के लिए पीने के दूध की बोतल तक नहीं थी. और ये लोग ने, सोसाइटी के मेंबर्स ने, ये सोसाइटी का गेट लॉक कर दिया और ट्रक को, सामान भरा हुआ ट्रक को बाहर नहीं जाने दे रहे थे.
उन्होंने कहा पहले मेंबर को बुलाओ, वो जो वाटर चार्जेस का इशू है वो रिजॉल्व करो, फिर ही हम आपका सामान और, हालांकि टेनेंट का वो इशू से कोई लेना देना नहीं था। इन दी एंड मेरे टेनेंट फ्रेंड ने मुझे फोन किया, हम उनके साथ लोकल पुलिस स्टेशन गए, वहां पे कंप्लेन किया, और वहां से पुलिस ने सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को वार्निंग दिया, उनसे बात किया, और अगर बोला कि आपने अगर गेट 10-5 मिनट में इमिडिएटली नहीं खोला तो वी विल कम एंड अरेस्ट यू। कर सकते हैं कि किस तरीके का हैरेसमेंट होता है, ये हमने लाइव देखा है, एक्सपीरियंस किए हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। इसको अभी हो गए 2-3 साल, एंड इट वॉज अ रियली वेरी सैड इंसिडेंट, बिकॉज एक 1.5 साल का बच्चा दूध के लिए रो रहा था, लेकिन उन्होंने, उनका सामान बंधा हुआ था, कहीं से दूध लाने नहीं दिया उनको, बच्चे को दूध नहीं पिलाने, मीन्स यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। दैट मीन्स हाउ मच पीपल वांट टू डोमिनेट इन द नेम ऑफ पावर। एक्चुअली कुछ मैनेजिंग कमिटी लोगों ने क्या किया है, वो लोग एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल इख्तियार किया है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब कोई टेनेंट आ जाता है सोसाइटी में या फ्लैट में, तो छानबीन कर चालू करते हैं उसके वेयर अबाउट, वो कहाँ काम करता है, या कहाँ काम, वो लेडी हो तो कहाँ वो मैडम काम करते हैं, उनके टाइमिंग्स क्या है, उसके मिलने जुलने वाले कौन है। तो जो निकम्मे लोग कुछ सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं जो कुछ काम धंधा करते नहीं, वो उनके ही गैंग के लोग होते हैं, उनके उनके पीछे लगा देते हैं कि आप जाओ जरा इनको फॉलो करो, स्टॉक करो, और देखो ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। तो ये सब चीजें लेके फिर वो मेंबर को परेशान करना और टेनेंट को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। दे demean the people, they will pass bad comments against the lady or the bachelor person who is staying there, और बार बार मेंबर को फोन करेंगे, आपके टेनेंट ने ऐसा किया, आपके टेनेंट ने पानी का नली खुला छोड़ के चले गए, मीन्स किसी ना किसी तरह से हैरेसमेंट करेंगे। तो ये कॉमन चीजें हो गई है। और ये कॉमन क्यों हुई है, कॉमन होने का नतीजा अब तक क्यों आया है, क्योंकि मेंबर्स उस पर कुछ एक्शन नहीं लेते। तो आप अगर अपने राइट्स इग्नोर करोगे, आप डर जाओगे, अगर मैनेजिंग के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, आपका वो एक इनकम सोर्स है। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, एक फ्लैट के 2 फ्लैट है, अभी रिटायर होने वाले हैं, तो चलो एक प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं, अभी रिटायर होने के बाद सैलरी तो कम हो जाएगी, तो ये सैलरी और पेंशन कुछ मिला के अपना गुजारा हो सके, इसलिए लोग वो रेंट पे देते हैं ताकि वो एक एडिशनल इनकम फैमिली को मिल जाए। तो लोग गुजारा करने के इंटेंशन से भी इन्वेस्ट करते हैं, नॉट नेसेसरी दैट the people only invest because they have vacant, I mean, not, I should not use this term vacant, means free cash lying with them. It's not necessary, sometimes they take loan also, वो रेंट में से उनका ईएमआई भी जाता है कि चलो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, टेनेंसी में भाड़े के अंदर अपना ईएमआई निकल जाएगा, बाद में प्रॉपर्टी तो अपनी हो जाएगी, कुछ बढ़ गया तो निकाल देंगे, 2 पैसे बन जाएंगे। तो काफी सारे लोगों का एक इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन मैनेजिंग कमिटी वो सक्सेस नहीं होने देता, क्योंकि एक जेलसी फैक्टर भी होता है, भाई मेरा तो एक ही फ्लैट है, ये मेंबर के 2-2 फ्लैट है, पैसे कमा रहा है, चलो इसको हम लोग छेड़ते हैं, इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कॉजेज नॉट ओनली साइकोलॉजी, मेंटल हैरेसमेंट टू द मेंबर। कोई अगर मेंबर उनके लेवल का होता है तो बड़े उनके खिलाफ खड़े हो जाता है, मतलब gives an answer in the right way, but there are some people who are timid, who are not outspoken, तो वो डर जाते हैं, एक्शन नहीं लेते, सोचते हैं कि बाबा अभी कौन बोलेगा हम लोग की तरफ से, यहाँ पे तो कोई किसी के लिए बोलता नहीं है, तो लोग सामने नहीं आते। नाउ वील गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी का भी एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, जैसा कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है, पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन। आप अभी देखते हो पुलिस चौकी में अगर जाओगे कुछ कंप्लेन करने, आप कहाँ रहते हो, नहीं नहीं ये हमारे पुलिस चौकी में नहीं होगा, ये ज्यूरिसडिक्शन हमारा नहीं है, आप वो 2 चौक छोड़ के जो पुलिस चौकी है वहां पे कंप्लेन दो। तो जिस तरीके से हर चीज का ज्यूरिसडिक्शन होता है अपने देश में या अपने स्टेट में, वैसे सोसाइटी का भी एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। द सोसाइटी का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, it is concerned only with compliance of the society bylaws prescribed, which means prior intimation to the society by bylaws form appendix number 27, form appendix number 11 with a check of ₹100 as nominal membership entrance fees, certified photocopies of the leave and license agreement duly stamped and registered,
and police verification report of the tenant. मतलब ये 4 चीज का ही ज्यूरिसडिक्शन आपके सोसाइटी के मैनेजिंग कमिटी को है। पहला कि आप मैनेजिंग कमिटी को इन्फॉर्म करो कि मेरा ये फ्लैट जो वेकेंट है, हम इसको भाड़े पे देने वाले हैं, ये टेनेंट होने वाले हैं, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, हो जाने के बाद उसकी कॉपी आपको बाकायदा दी जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म सबमिट हो चुका है, और हम नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो है, जिस दिन से फ्लैट भाड़े से चले जाएगा नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आपको मिल जाए। बस ये 4 चीजों के अलावा सोसाइटी का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। वो आके इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, टेनेंट कौन है, इंटरव्यू नहीं ले सकते। आओ पहले टेनेंट को हमारे पास लाओ, पहला हम उनका इंटरव्यू करेंगे, फिर आप उसको अपने घर की चाबी देना। नो नो वे, किसी को भी आपके टेनेंट का इंटरव्यू करने का हक नहीं, एक्सेप्ट आपको। आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे दे रहे हो, तो आप अपने टेनेंट का इंटरव्यू ले लीजिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, उनके सिंगल टेनेंट्स होते हैं इसलिए उनके पेरेंट्स कौन है, वो कहाँ काम करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इट इज योर राइट टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, लेकिन मैनेजिंग कमिटी हैज नथिंग टू डू विथ ऑल दिस। और हम जो अपेंडिक्स फॉर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 27 एंड फॉर्म नंबर 11, even if these forms are not submitted to the society, it does not illegalize the tenant, nor does the tenant become a trespasser in the society of the member. Okay, तो तुम बोल नहीं सकते कि तुमने ये फॉर्म नहीं दिया, वो फॉर्म नहीं दिया है, इसलिए तुम ट्रेसपासर हो। नहीं, if the landlord or the member, if the owner of the flat has informed the society has no right to restrict any person from entering the premises if he has been given permission by the owner of the flat. Now, if the managing committee does not levy or forgets to levy the 10% occupancy charges, then the managing committee is liable to pay the loss of the society, means the 10% or non-occupancy charges from their own personal pocket. अभी ये नया ये है जिसके अंदर अभी सपोज बिल आ गया आपको, लेकिन मैनेजिंग कमिटी के सेक्रेटरी जो भी बिल बनाता है, उनका मैनेजर हो सोसाइटी का, वो भूल गए 10% ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाने, तो वो उनको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। दे कैन नॉट बी नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, दे have to perform their duties within the parameters of law and for the very purpose that they have been made to sit on that seat. और वो टेनेंट से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी टैक्स, बीएमसी के वाटर चार्जेस एक्स्ट्रा भरो, ऐसा कोई भी चार्ज नहीं ले सकते हैं। जो सब मेंबर्स को एप्लीकेबल है वही तुम्हारे टेनेंसी फ्लैट को भी एप्लीकेबल। वो आपको ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे टेनेंट रह रहा है इसलिए वाटर चार्जेस पे 5%, जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एंड प्लीज रिमेंबर, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आर फिक्स्ड एट 10%। ओनली फिक्स्ड 10% चार्जेस over the regular society charges can be collected as non-occupancy charges, nothing beyond this. अभी क्रिमिनल लाइबिलिटी, अभी जब सोसाइटी पे क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लागू होती है, बिकॉज इट इज नॉट दैट दे आर फ्री फ्रॉम द नुआंसेस ऑफ द लॉ, दे हैव टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। मैनेजिंग कमिटी क्या सोचती है, इलेक्शन हो गया, हम लोग बॉडी पे आए तो हम अपनी ही मनमानी कर सकते हैं, वैसे नहीं होता है। They are criminally liable and answerable to every member because eventually they are also. It is a criminal offense to collect any charges in the guise of shifting charges or tenancy deposit or higher occupancy charges over and above the mandatory 10% non-occupancy charges on the society services and maintenance charges. मतलब कभी कभी वो बोलेंगे शिफ्टिंग चार्जेस दे दो, लिफ्ट में सामान गया तो लिफ्ट का चार्जेस दे दो, टेनेंसी का एक्स्ट्रा कुछ 5,000 रुपया 2,000 रुपया डिपॉजिट दे दो सोसाइटी को। तो ऑल दीज आर एक्सटॉर्शन। इन सिंपल वर्ड, अंडर द आईपीसी दिस विल बी एक्सटॉर्शन बाय द मैनेजिंग कमिटी and you can file a criminal complaint against them. A society is not entitled to lever compounding rate of interest on non-occupancy charges or any outstanding amount whatsoever. मतलब जो इंटरेस्ट वो लोग लगाते हैं, कुछ भी इंटरेस्ट का अमाउंट लगाएंगे, इस पे ये इंटरेस्ट लागू होता है, ये नहीं पे किया तो ये इंटरेस्ट लगा देंगे, दे कैन नॉट डू दैट।
it is illegal to levy any other amount of charges in the members bill that is not mentioned in the approved bylaws नंबर 65 ऑफ द सोसाइटी. तो बायलॉ नंबर 65 जो सोसाइटी के होते हैं मॉडल बायलॉज, जिसके बेसिस पे हर सोसाइटी अपने बायलॉज बनाती है, उसके अंदर स्ट्रिक्टली मेंशन किया हुआ है विच चार्जेस द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी कैन कलेक्ट. ओवर एंड अबव दैट द सोसाइटी कैन नॉट कलेक्ट एनी चार्जेस, एंड इवन इफ दे हैव टू डू, they have to give a notification to the registrar of that, get it approved, make an amendment in the bylaw, get that bylaw approved, and only then they can collect if the registrar okay. If the registrar also says कि भाई ये नहीं कलेक्ट कर सकते आप, ये इलीगल है, तो नहीं कर सकते, क्योंकि in that case even the registrar will be liable for prosecution. Sorry. It is also illegal to levy any legal litigation charges in the members' bills without a judicial order, irrespective of any criteria or any general body resolution whatsoever. For example, अभी एक मेंबर ने सोसाइटी पे कुछ केस कर दिया, उस पे लीगल चार्जेस जो लेवी हो जाते हैं, he cannot levy those legal charges on the other members because the society is paying it. तो तुम्हारे अकाउंट से दे दो. That fight is between the members and the managing committee. Unless and until there are judicial decisions on them, and for that they need a judicial order. In case the decision comes in favor of the managing committee, for example, then the managing committee can ask in the press for the recovery of the legal charges from the member who has filed the litigation, but not against the other members who are no way involved in it. Similarly, the member can also ask for the legal fees and the legal costs he has incurred to get the managing committee prosecuted, and then that charges the managing committee will have to pay from their own personal pocket. They cannot pay from the society account. For example, सोसाइटी डिबार हो जाती है और लीगल चार्जेस हो जाते हैं 15-20 हजार, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो निकलते निकलते मैनेजिंग कमिटी बोल नहीं सकती भाई सोसाइटी के अकाउंट से दे के हम लोग निकल रहे. जी नहीं, ये उनको अपनी पर्सनल पॉकेट से देना होगा और फिर अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी. The managing committee cannot restrict or restrain or intimidate any bachelor from staying in a housing society subject to compliance of minimum requirements, registered leave and license agreement, tenancy police verification report, as I just mentioned sometime back. The managing committee can be prosecuted for restricting, intimidating, threatening, insulting, and so on to any bachelor or tenant from residing in a society. तो अगर इवन द टेनेंट गोज एंड कंप्लेन्स अगेंस्ट द मैनेजिंग कमिटी मेंबर, नॉट नेसेसरी कि मेंबर को ही जाना है, टेनेंट भी जाके कंप्लेन कर सकता है कि मैंने तो सारे फॉर्मेलिटीज पूरे किए हैं, मैंने लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट मेरे ओनर को दिया है, मैंने सारा पुलिस वेरिफिकेशन को भी कंप्लाई किया है, ये मेरा वेरिफिकेशन रिपोर्ट नंबर है, और इसके बावजूद ये लोग मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं. तो इन दैट केस द मैनेजिंग कमिटी विल बी क्रिमिनली लायबल. Not only that, there are other criminal liability also on the managing committee. Some managing committee get some, sadistic pleasure, and they habitually prone to harassing the members or the tenant. मतलब एक दादागिरी होती है, वो उनका एक काटल हो जाता है, 4-5 मेंबर मिलके चलो परेशान करो. They think that they are the landlords of the society, and they can dictate term not only to the tenant but to the flat owners also. मतलब flat owners भी उनके slaves है. ये ऐसा मैनेजिंग कमिटी ये हो रहा है और काफी सालों से हो रहा है और काफी लोग चुप बैठे हैं. और ये एक फोरम है जहाँ से हेमंत सर ने इतना आगे आके इतना इनिशिएटिव लिया है ताकि लोगों में वो जागरूकता हो कि वो अपने अधिकारों का मतलब एहसास हो जाए उनको कि अपने अधिकार क्या है. हर इंसान मेहनत से फ्लैट खरीदता है, उसकी अपनी एक ख्वाहिश होती है कि मैं फ्लैट में रहूं, सुकून से रहूं. हर इंसान मेहनत से ऊपर आता है. हम में से कोई बिजनेस टाइकून नहीं है, सब अपने सादे मिडिल क्लास के लोग हैं जो मेहनत करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, घर आते हैं, सुकून से अपने घर में रहते हैं. तो फिर इन लोगों की बातें क्यों सुन. For any reason, if the managing committee restricts or prohibits or stops or disallows a bona fide tenant
bachelor or any paying guest from entering the society's building or premises, then the tenant can register a police complaint or private criminal case in a local magistrate criminal court against all the managing committee members along with the security personnel for restraining and stopping him from going to his rented flat. फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्योरिटी ने भी रोकी, कि सिक्योरिटी भी उनका ही भाई होता है, वो फोन पे सिक्योरिटी को बोल देते हैं कि सिक्योरिटी आपको क्या बोलेगा, मैं तो यहाँ नौकर हूँ, मुझे जो बोला गया है वही मैं करूँ. तो दिस इज नॉट द केस. ही विल बी अ पार्ट ऑफ दैट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. So whether he is playing a direct role or an indirect role, the security will also become liable and the security will also be prosecuted under the criminal laws. And if the security is on the contract basis, then the contractor will also become liable. अब जब पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी होती है इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द मैनेजिंग कमिटी फॉर ऑल द इन्फ्रेशियस एक्टिविटीज एंड हैरेसमेंट in the local magistrate criminal court or with the police station, section 339 and 341 read with section 34 of the Indian Penal Code. Depending on other factors, further complaint can be made under the following section. तो कोई अगर नोट करते हैं ये सारी चीजें तो प्लीज लिख के लीजिए. सेक्शन 339 and 341. I will just let you know in short what is section 339 and 341. Just give me a moment. Wrongful restraint. Section 339 is wrongful restraint under the Indian Penal Code, which says that whosoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to wrongfully restrain that person. मतलब तुम अगर किसी का भी रास्ता रोक के उसको उसके डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हो जबरदस्ती से, तो यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनली बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच इज इलीगल. उसका एक्सेप्शन क्या है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर अ लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of the section. मतलब इसका एक्सेप्शन क्या है कि अभी सपोज आप एक आर्मी लाइन से जा रहे हो और वहां का जो आर्मी सिक्योरिटी है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि देखो भाई या बहन, या आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, आर्मी एरिया है, तब आप उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया. दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड फॉर कॉमन पीपल फ्रॉम ट्रैवलिंग. In that case, you will not be allowed to register a complaint. But in a society, if any person is, any managing committee, security is restricting your tenant or you for any reason whatsoever, this section will apply. The another section is section 341. I'll give you an explanation of that also. 341, it deals with the punishment. अभी ये IPC इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन होता है जो गुनाह बताता है क्या है, एक्सप्लेन करता है, और एक होता है कि उस गुनाह का पनिशमेंट क्या है. सो सेक्शन 341 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद द पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. So whosoever wrongfully restrains any person shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or a fine which may extend to 500 rupees or with both. तो 1 महीने का imprisonment, आपको फाइन भी भरना होगा, और अगर फाइन नहीं भरा तो वो आपका जो 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है. तो ये 2 सेक्शन है. फिर उसके साथ है सेक्शन 153A एंड 298 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल. और ये सेक्शन क्या है हम 1 मिनट में आपको बताते हैं. सेक्शन 153A. Just give me a moment, please. I'm sorry, 1 second, please. Okay, so section 153A, promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. अब सोसाइटी में तो हर रिलीजन के लोग रहते हैं, मिलजुल के आपस में एक दूसरे के फेस्टिवल्स मनाते हैं, साथ में रहते हैं, फेस्टिविटी शेयर करते हैं. आपके नेबर क्रिश्चियन हो सकते हैं, एक मोहम्मडन हो सकता है, कोई साउथ का हो सकता है, नॉर्थ का हो सकता है, कोई भी रिलीजन का हो सकता है.
लेकिन अगर कोई मैनेजिंग कमिटी मेंबर आपको उस उत्साह करके या मीन्स इंस्टिगेट करके आपको ऐसे उनको आपके खिलाफ झगड़ा कराने के लिए रिलीजन के बेसिस पे, अरे नहीं बाबा ये तो अपने स्टेट के नहीं है, ये तो यहाँ से आए हैं, ये तो वहां से आए हैं, ये तो ये भाषा बोलते हैं, even if that person incites any type of turmoil or clashes between on religion ground, that person can be prosecuted under law. And this can be in the form of words, either spoken or written or even by sign. कुछ कुछ होता है, हम लोग अक्सर देखते हैं सोसाइटी में, जब कोई आता है तो एक वहां से इशारा करेगा, ऐसा थंब दिखाएगा, अरे वो आ रहा है, तो इवन बाय साइन अगर कुछ ऐसा होता है तो इट इज नॉट अलाउड। मतलब हमको सोसाइटी में उसका उद्देश्य क्या है कि वी लिव इन हार्मनी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की रिलीजन के लिए, एक दूसरे की भाषा के लिए। वो कहीं से भी आए, हमारे देश के ही लोग हैं, हम लोग एक देशवासी है, इकट्ठे रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने एक दूसरे के दुख सुख। तो लिविंग इन हार्मनी इज द नीड ऑफ द आवर। और ये सब जो कुछ लोग ट्राई करते हैं कि लोगों के अंदर भेदभाव बनाए रखे, ये तो दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर लॉ। The next section is section 298, means uttering words which deliberate intent to wound the religious feelings of any person. मतलब जानबूझ के हम किसी के रिलीजन को लेके कुछ बात करें, वो पर्सन जा रहा है लेकिन हम उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे, लेकिन वो पर्सन हम लोग से 2 फुट या 5 फीट दूरी पे है, लेकिन हम जोर से कुछ ऐसा रिमार्क पास करते हैं जो उसके इंसान के रिलीजन्स फीलिंग को उसको हर्ट कर जाए, ऐसा बोलना भी गलत है। और ये डेलिबरेटली अगर कोई कर रहा है, ठीक है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं, बात हो जाती है, आजकल का माहौल भी कुछ ऐसा है, कभी कभी हर किसी से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो दैट इज ठीक है, हम लोग को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, बट वी कैन नॉट हार्म द सेंटिमेंट ऑफ अनदर पर्सन और अनदर पर्सन रिलीजन। वी हैव अ राइट टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन अबाउट समथिंग गुड बैड अगली, दैट इज फाइन, लेकिन हम जानबूझ के किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। अभी सेक्शन 339 तो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद। सेक्शन 34, सेक्शन 34 इज पनिशमेंट 341, सॉरी, वो भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया, द पनिशमेंट ऑफ 1 month एंड विथ फाइन एक्सेट्रा। अभी ये अभी हो गया टेनेंसी की बात है, लेकिन सोसाइटी में ऐसे भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे सोसाइटी फॉर्म होने के बाद किसी को फ्लैट बेचना है, अभी आपको कहीं और शिफ्ट होना है, आपको फ्लैट बेचना है, तो आपको वो लोग क्या बोलेंगे, बैचलर को नहीं बेचना है, फैमिली को ही बेचो। तो ये भी वो लोग नहीं कर सकते, इट इज योर राइट, इट इज योर फ्लैट, यू हैव द फुल लिबर्टी कि आप जिसे चाहे अपना फ्लैट बेच सकते हो, अनलेस यू नो दैट द पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, the person whom you are selling the flat is known to you, the person is a good citizen of this country, and you are assured of that the person is 100% reliable, you can go ahead with the sale deed, you can go ahead with the agreement, you just need to inform, I am selling my flat, take the NOC, pay the transfer premium, whatever 25 rupees, 1000 rupees, and sell your flat. But the society cannot restrict you from to whom you are selling your flat. Well, that is it. Nothing much more in this tenancy thing and bachelor thing. And I'm sure I have almost covered all the topics. In case something is remaining, I request Hemant sir, please take it up, if you don't mind. मैडम, आपने सोसाइटी के बारे में तो काफी कुछ बता दिया, जी पर आप सर। टेनेंट के भी तो बारे में बताइए ना, कि टेनेंट भी तो शोर करते हैं, तो गलतियां करते हैं, और बस उसके बारे बदतमीजी में करते हमने हैं, दारू पी के आते हैं, और एक मेंबर ने क्वेश्चन किया हुआ है कि शोर करते हैं, लाउड म्यूजिक करते हैं, लड़कियां लेकर आते हैं, वगैरह वगैरह। ये गलत है तो सर, ये खाली आई ऑलरेडी ये स्पोक ऑन दैट। ये सिर्फ टेनेंट ही करते हैं क्या, बाकी जो ओनर्स हैं उनके भी बच्चे कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए मैम। Yeah, sure sir, sure sir, thank you sir to bring this to my notice. Well, regarding making noise, एनीथिंग आफ्टर 10 PM इज नॉट परमिटेड, फिर वो फ्लैट ओनर हो, टेनेंट हो,
या कोई अफलातून हो, इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपका नेबरहुड का सोसाइटी भी 10 बजे के बाद वहां म्यूजिक लगी है तो डायल करिए और पुलिस को बुलाइए। हम करते हैं, हम 101% करते हैं। हम अपने नंबर से 100 को डायल करते हैं, पुलिस को फोन करके बोलते हैं बाजू की सोसाइटी में 10:30 तक हम वेट करते हैं। चलो कोई फंक्शन हो रहा है, आधा घंटा चलो लीवे दे देते हैं कि सब पैकअप विकअप हो रहा होगा, लोग निकल रहे होंगे, तो वो लोग जाते टाइम पे हेलो बाय जो भी उनके शेयर करते होंगे, तो चलो 10 हाफ एन आवर ठीक है। लेकिन उसके बाद 45 मिनट्स के ऊपर होने लगे तो आई स्टार्ट गेटिंग इम्पेशेंट। I'm talking about myself. And I 101% dial 100 and I call the police. I'm staying in my sister's flat. My sister is the owner. But I dial, I'm not even, I'm just staying with my sister. But I dial the police and I call them. Because any noise after 10 p.m. is not allowed. देखो आप सोचिए, आपकी सोसाइटी में बुजुर्ग लोग रहते हैं, छोटे बच्चे हो रहते हैं, तो बुजुर्ग लोग, कोई डायबिटीज है, कोई बीमार है, तो वो लोग दवाई लेते हैं, उनको आराम की जरूरत होती है। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे लोगों के, इफ यू सी द ईयर ड्रम्स आर डेलिकेट, any damage to their eardrum at this tender age can cause irreparable loss in their young age. So we have to be considerate about these small factors which are not visible to the naked eye. हम लोग को दिखते नहीं है, लेकिन these problem persist, होता है ऐसा। और हमने ये बाकायदा हमारे बाजू की सोसाइटी बाजागरबर में देखा है लोगों की तकलीफों को, इसलिए हम आवाज उठाते हैं। और लाउड म्यूजिक, फ्रेंड्स को लाना, ठीक है, विद इन, यू जनरली ब्रिंग योर फ्रेंड्स, यू हैव स्टेइंग इन अ रेंटेड फ्लैट, आप बुलाओ अपने फ्रेंड्स को, लेकिन डिसेंट आवर्स में बुलाओ, डिसेंट वे में बिहेव करो, स्टे एज अ बैचलर और एज अ लेडी टेनेंट, बट स्टे एज अ वी आर स्टेइंग लाइक विद अ फैमिली। ऐसा आप महसूस करो कि आप आपके पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, कि आप आपके पेरेंट्स के सामने ऐसी बेहुदा हरकतें करोगे, नहीं करोगे। तो अपने आप को एक लिमिटेशन रखो कि हमको किस तरह से बिहेव करना है। आपको पार्टी करनी है, पब में जाओ, बाहर होटल्स में जाओ, आप जा मैडम, सकते मैं हो, जो करिए। आप बता रहे हो ये टेनेंट करते हैं, लेकिन एक प्रश्न ये आता है सारे दोस्तों के लिए जी कि मैं सर। एक सोसाइटी का मेंबर हूँ, रेगुलर मेंबर हूँ, फ्लैट ओनर हूँ, मेरे बच्चे शोर करते, बदतमीजी करते हैं, तो क्या उनको भी मैनेजिंग कमेटी या सोसाइटी बाहर निकाल देना चाहिए, या सिर्फ वो बाहर के जो बच्चे हैं टेनेंट हैं सिर्फ उन्हीं को बाहर निकालना चाहिए? नहीं सर, तो हम अगर दोनों ही कर रहे सोसाइटी हैं, की, दोनों ही लड़कियां लेके आते हैं, दोनों ही दारू पी के तमाशा करते हैं। अब दोनों नहीं सर। केसेस में क्या करना चाहिए? सर टेनेंट को, अगर टेनेंट ऐसा कर रहा है तो दिस मैटर हैज टू बी फर्स्ट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द ओनर ऑफ द फ्लैट कि आपके टेनेंट विथ एविडेंस। और वो मेंबर जो ओनर है उसका राइट बनता है कि टेनेंट को वार्न करे, एक बार वार्न करे, नहीं तो फिर लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट के बेसिस पे जो नोटिस पीरियड का टर्म्स कंडीशन है उस पे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके उनको निकाल दे। ये हो गई टेनेंट की और ओनर की बात। रहे जो मेंबर है उनके बच्चे, वो भी बदतमीजी होते हैं कोई कोई। माँ बाप भी सुनते नहीं है। आजकल कैसे रहता है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग सो द चिल्ड्रन गेट एवरीथिंग रेडी ऑन अ प्लेटर। They have not seen the hard work the parents are putting in to come to that level to give them all these luxuries and all these benefits that they enjoy today. तो बच्चे भी शोर करते हैं तो मैनेजिंग कमिटी कैन इशू वार्निंग टू द मेंबर एज वेल, and if the member does not discipline his children, then the managing committee can give a official police complaint कि बाबा ये मेंबर के बच्चे, ये ऐसी ऐसी परेशानी है, तो आप उनको बुला के काउंसिल करो। तो काउंसलिंग हो सकती है। तो दोनों तरफ से इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, वेदर वो मेंबर के बच्चे हो या मेंबर हो। आपके घर में पार्टी करनी है, आराम से करो, या तो फिर साउंड प्रूफ विंडोज बना दो ताकि बाहर आवाज ना जाए, या फिर टाइम लिमिटेशंस फॉलो करो। आई होप मैडम, मैं एक प्रश्न ऐसा आता है कि ये जो हिपोक्रेसी वाला जो आइटम है ना, मेरे बच्चे करेंगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे अगर मेरे सोसाइटी में आके रहते हैं बैचलर टेनेंट बोल के, है ना, बैचलर टेनेंट मतलब लड़की हो या लड़का हो जो भी कुछ है, अगर उन्होंने दारू पिया और शोर किया तो फट से पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन बाकी मेरे और बाकी मेंबर्स के बच्चे अगर शोर करते हैं, कुछ करते हैं, तो छोटा मोटा वार्निंग दे के छोड़ देंगे का?
या वार्निंग भी नहीं देने का? नहीं नहीं, अपने ही लोग हैं, इग्नोर करें। अपने ही बच्चे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? डिस्क्रिमिनेशन कहाँ तक सही है? नहीं सर, डिस्क्रिमिनेशन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप अपने बच्चों को गलत चीजें करने का पहले तो बढ़ावा दे रहे हो। उनको सही टाइम पे रिस्ट्रिक्ट करके उनकी आदतें सुधारनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें जब हद से आगे बढ़ जाती है तो वो उन पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। और आगे जाके इट विल बी, माँ बाप बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, ऐसी हरकतों से उनके उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, ये हमारा व्यू है। ठीक है, मस्ती करना हर बच्चे, हम बड़े भी कभी कभी मस्ती करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं जब जूने फ्रेंड्स मिल जाते हैं अपने एज वाले तो। बट वी कीप लिमिटेशंस, वी वर्क विद इन दोज डिमार्केशन एंड विद इन दो लेवल्स, क्योंकि अभी एक मेच्योरिटी लेवल आ गया है। तो लेकिन ये गलत है कि आप हिपोक्रेसी नहीं कर सकते हैं, तो फिर दूसरे ओके मेंबर्स मैम। ने आवाज उठाना चाहिए। ओके, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है मैम। शुड आई जी रीड सर, इट आउट और विल यू रीड इट मैम? I'll read it, sir. Just give me a second. Okay, you have been I'll just speaking go in to spite of a the. bad throat. I will read it out for you, madam. It's One okay, sir. Mr. Paresh, It's my pleasure. thank you. Paresh Rathod is telling ki, madam, tenant calling on their friends on Saturday night, Sunday and baki nahi, keeping high volume, and they disturb the entire population residing nearby. And this happens late night hours, जो अभी हमने बात किया। जी इन्होंने सर। बोला है कि टेनेंट करता है ये सब चीज, और वो हाई वॉल्यूम करते हैं और बाकी पॉपुलेशन को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसके बारे में आपका क्या व्यू है? और सिमिलरली, अगर ये टेनेंट ने किया है तो चलो ठीक है, आप इनका ये जो कहना है वो सोच समझते हैं, लेट नाइट आवर्स में भी करते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी का लड़का ने भी या लड़की ने भी ऐसा किया तो क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में आप रोशनी डालिए मैम। सर, कोई भी हो, वो सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो या कोई भी मेंबर हो, टेनेंट हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने आवाज किया और यू फील दैट थिंग इज डिस्टर्बिंग यू, एंड ठीक है, अगर वो 10 बजे के पहले कुछ कर रहे हैं तो अगर आप उनको जाके एक रिक्वेस्ट करिए कि देखो, 10 बजे तक ही ये सब अलाउड है, लेकिन ये आपका वॉल्यूम बहुत हाई है, हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क वी आर डूइंग, तो थोड़ा आप वॉल्यूम कम कर दीजिए, थोड़ा डेसिबल कम कर दीजिए। तो एक आप वो उनको 10 बजे के पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 10 बजे के पहले आप थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, ताकि हम लोग को डिस्टर्ब ना हो। आपको एंजॉय करना है, आप कीजिए, आपकी आवाज की वजह से हमें जो सुनना है वो हमें नहीं सुनाई देता है, ओके मैम। तो इतना आप कर दीजिए। We और have got उसके बाद Advocate Anil Pathrobe in our webinar. Anil ji, are you there, please? Can you come forward, please? Yes sir, good evening sir, everybody Good good evening, evening. sir. अनिल जी, आपने मैंने जो एक एक केस केस लॉ नंबर, डाला हुआ है, इसके बारे में कुछ रोशनी दे सकते हैं अपने दोस्तों को? हाँ सर, ये अभी क्या है, ये गुजरात का केस है। गुजरात हाई ओके कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सिमिलर केस था कि बैचलर्स को अलाउड नहीं करना चाहिए, और वो फोरम वगैरह में गए, पहले सोसाइटी है, फिर वो एग्रीव्ड जो लैंडलॉर्ड है उसने केस डाला है, ये अंडर आर्टिकल 21 वगैरह में डाला शायद। तो उस केस के अंदर में हाई कोर्ट ने भी यही बोला है, जो फतिमा मैडम और जो लॉ बोलता है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हो रहने के लिए बैचलर्स को। एवरीबडी have been given right in constitution, so whosoever the society management committee अगर वो ना बोल रहे हैं, ऐसा कुछ रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो वो इन एजीएम, तो ये सब गलत रेजोल्यूशन है, इसको आराम से चैलेंज किया जा सकता है। अगर किसी को तकलीफ है तो वी आर हैविंग आवर लीगल टीम, हेमंत सर के पास तो फातिमा मैम, मैं हूँ, और भी बहुत सारे एडवोकेट, तो वी आर रेडी टू हेल्प एनी टाइम, कि अगर किसी ऐसे मेंबर को तकलीफ हो रही है तो वी विल put up in the respective courts for the betterment of the whole India, क्योंकि ये अगेंस्ट है सर। अगर यही सोचे कि मेरा बच्चा अगर कहीं कलकत्ता जाके कुछ उसको आईआईएम में मिल गया और वो आईआईएम में जगह खाली नहीं है हॉस्टल में, तो जरूर बाहर जाके रहेगा वो।
और बाहर जाके रहेगा तो फिर वो वही तकलीफें हैं जो फातिमा मैडम बोले। बाहर जाके रहने से लड़के लोग से अच्छा अगर वो पीजी में रहेगा या कोई हॉस्टल या कोई किसी के साथ में किराए से रहेगा बिल्डिंग में, तो बच्चे लोग क्या होता है अपने आप सिंसियर हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हॉस्टल में ओके रहेंगे सर। तो बिगड़ेंगे, कोई फ्लैट में रहेंगे तो बराबर सीधे लाइन में आ जाते हैं। एंड जो ओके सर। कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहीं नहीं लिखा है कि रेंट पे आप बच्चों को, मतलब चिल्ड्रंस को या बैचलर्स को आप नहीं दे सकते। ये तो गलत रेजोल्यूशन है जितने भी सोसाइटी ने डाला है महाराष्ट्र में। दैट इज नॉट लीगल एनी टाइम। और इसके ऊपर मैं आपको और काफी जजमेंट भी दे सकता हूँ। Sure, Yes, एंड sir. sir, दिस इज sure. अ चैलेंजेबल, दिस इज अ I'll चैलेंजेबल थिंग। come back to you, sir. I will take the next question. We have got our social activist, Mr. Mohammad Afzal. He is asking, Fatima ma'am, this is for you. वो कह Yes, sir. रहे हैं कि इंटरव्यू लिया, पुलिस एनओसी है या नहीं है, टेनेंट का बैंक डिटेल्स पूछ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? फाइन लगाना कहाँ गलत है तक सर. सही? It is intrusion of privacy of a person. They cannot do that. Only the landlord or the owner of the flat has a, not even the bank details. The owner को भी हक नहीं है कि जो आदमी उसके घर में रहने को आ रहा है उसके बैंक डिटेल्स पूछे. हाँ, उसका इतना ही हक है कि उसका जो टेनेंसी का पोस्ट डेटेड चेक जो रेंट से है, इफ द पर्सन इज विलिंग टू पे बाय चेक, तो वो पोस्ट डेटेड चेक ले ले. दैट्स इट. उतना तक ही उनका हक बनता है. ही कैन नॉट आस्क हिम शो मी योर पासबुक, show me your bank statement. It is illegal, sir. It is intrusion of privacy and it is not right. This is going too far and too much. It should not be ओके, happening and it should not be done. टेक्निकल क्वेश्चन सर, है. हाँ हाँ, मोहम्मद साहब पूछिए, बोलिए. फातिमा मैम, थैंक यू सो मच. मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम बदल के अनकोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कर देनी चाहिए. ओके. आप अच्छी तरीके से ओके. जानते हैं कि आज के दौर में कोर्ट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं. डेप्यूटी रजिस्ट्रार जी ऑफिस जो सर. है वो किस तरीके से काम कर रहा है. और ये चीज तो मैनेजिंग कमेटी से ढकी छुपी तो है ही नहीं. तो क्या हो जाता है कि जब वो एक सिंडिकेट बना के जब मेंबर्स को परेशान करते हैं तो वो भी जानते हैं कि हम जो मनमानी करेंगे वो मतलब यानी उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया नजरअंदाज हो जाएगा. जाती है. सेकंड नहीं चीज सर, ये एक्चुअली आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसमें रोल प्ले गवर्नमेंट का ही मेन होना चाहिए. गवर्नमेंट शुड टाइटन द नोज अराउंड द मैनेजिंग कमिटी एंड ऑल्सो ऑन द रजिस्ट्रार एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एज अ होल. एक टारगेट वेरी रखना चाहिए कि एनी पर्टिकुलर ग्रीवेंस दैट कम्स टू यू हैज टू बी दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क. There are cases where matters get adjourned because the officer is not present in the cooperative registrar's office. Registrar नहीं आ रहे हैं. क्यों नहीं आ रहे हैं? They are not having the time, so you delegate that work to somebody else. Do something about it. Let people get justice. आप अजन कर दो तो मैटर 3-3 महीनों के लिए. एक मामूली मैटर है जो तुम 1 घंटे में रिजॉल्व कर सकते हो आपके पोजीशन से और आप रजिस्टर हो, लेकिन उसके लिए आप 3 महीने उसको आगे ढकल देते हो. व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस सिस्टम आर वी लुकिंग एट? वी हैव टू हैव अ फ्रेमवर्क. द टारगेट हैज टू बी देयर. ये पीरियड तक जितना एविडेंस है, जो कुछ भी है, उस पे हम लोग डिसीजन देना ही चाहिए. बिल्कुल मैम. क्योंकि जितना एक हम और टाइम लेते हैं उतना. जी सर, बोलिए प्लीज. नॉर्मली हम अक्सर ये सुनते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के भाई मंत्रालय में काम है तो वो वहां पे चले गए हैं. और एक्चुअली वो जब आप मंत्रालय में भी नहीं जाते, वो बीच में किधर तुम्हें गायब हो जाते. वेरी समझे ट्रू आप? जी. या और दिस दिस इज द जैसे केस. ये जी क्या हो गया है, 10 ऑफिस को डिवाइड करने से जब एक ही शेल्टर में सब बैठते हैं तो उन पे नजर रखी जा सकती है. वो बिल्कुल मंत्रालय में जाएंगे तो वो बोलेंगे ते तर त्यांच्या डिपार्टमेंट मध्ये बसले, तुम्ही तिकडे जावा, मल्होत्रा हाऊसला बसले. वेरी ट्रू. मल्होत्रा हाऊसला गेले तो बोलेंगे ते मंत्रालयाला गेले हैं, मंत्रालय मध्ये काहीतरी काम है. लेकिन वो ना मंत्रालय में है और ना ही वो मल्होत्रा हाउस में है. वो तो बीच में ही कहीं गायब हो गए. किसी के साथ बैठ के वड़ा पाव खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, किसके साथ सेटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं. ये सब हो रहा है सर. जी. और जैसे कि आपने 101% हो रहा है. जी जैसे कि दे हैव आपने टू बी बताया आंसरेबल. वेरी अगर ट्रू. रजिस्ट्रार का काम है जस्टिस देना है तो ही हैज टू बी प्रेजेंट इन हिज सीट. ही कैन टेल द मंत्रालय आई कैन नॉट कम.
एंड मंत्रालय ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड, मंत्रालय ने भी टाइम फ्रेम ऐसा बनाना चाहिए कि ये जी पीरियड में उनको बुलाना ही नहीं चाहिए। जब तुमको बिल्कुल। मालूम है कि ये पीरियड में उनका हियरिंग है, तो आप उनको क्यों बुलाते हो? जी उनको उनकी ड्यूटी करने दीजिए। वेरी ट्रू। बराबर है ना? तो ये सब बिल्कुल चेन है। बिल्कुल। एक चीज और मैं बोलूंगा कि जैसे आपने बताया था कि पुलिस कंप्लेन फाइल करने का, तो फॉर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने दसों बार इस चीज को अपनाया है कि कोई भी टेनेंट को अगर मैनेजिंग कमेटी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती, या सिक्योरिटी वाले रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आप तुरंत 100 नंबर डायल कीजिए और इमिजिएटली आपको समाधान उसका मिल जाएगा। सो दिस इज यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि भैया ये सिविल मैटर है और इसमें हमारा कोई दखल नहीं है, यू प्लीज गो टू द डेप्यूटी रजिस्टर। नहीं, जी मैम। यूजुअली पुलिस ऐसा नहीं बोलती है। जब मैटर्स कंसर्निंग नॉइज एंड ऑल, इट फॉल्स अंडर देयर जुरिसडिक्शन, तो वैसे तो वो या बोलेंगे, कल को पुलिस ऐसे भी बोलेंगे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, नॉइज पोल्यूशन उसके अंदर आता है, यस। एनवायरमेंट लॉज आता है, हमारा कोई जी कंसर्न नहीं। नो, दे आर बाउंड टू टेक नोट ऑफ इट बिकॉज हाँ। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। रिगार्डिंग द नॉइज, ऑफ कोर्स द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, एक यस और चीज आपको मालूम है कि ये जितने भी मैनेजिंग कमिटी है, अभी एक आदमी जो है उसको रेंट पे खड़े इंटरव्यू के नाम से, उसका इंटरव्यू में इतना डिले करती है, तो कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस? सर, पहले तो मैनेजिंग कमिटी हैज नो राइट टू टेक एनी इंटरव्यू. Okay, whatever details about the tenant, see, the tenant comes to always the owner. अगर चलो भूले भसरे से वो कभी कभी चला भी जाता है, कोई बंदा सिक्योरिटी को जाके पूछ लेता है इधर कोई फ्लैट खाली है क्या। बोलते हैं लोग जाते जाते, जब इंसान घर ढूंढते रहता है, वो सोचता है राइट। सिक्योरिटी को, ओनर लोग भी कभी कभी सिक्योरिटी को बोल देते हैं कि भाई मेरा फ्लैट रेंट पे देना है, कोई आए तो ये मेरा नंबर है, दे देना, क्योंकि वो वहां नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो उस दरमियान क्या होता है कि वो बंदे को मैनेजिंग कमिटी पकड़ लेती, सिक्योरिटी को बोलते हैं ठीक है ते परत आला ना आमच्याकडे पाठवा, फिर वो ये सब स्टार्ट कर देते हैं। तो इवन द टेनेंट्स हु अप्रोच सच थिंग्स शुड अवॉइड गोइंग, दे शुड नॉट गो। राइट। तुमने किसको कांटेक्ट किया है, सिक्योरिटी को, उसको सिर्फ इतना पूछना है घर भाड़े पे है, किसका है, उनका नंबर दो, हम ओनर को कांटेक्ट करते हैं। 10 लोग उनको बुला के पूछ रहे हैं, तो वो इंसान ने ही अपने एक बाय डिफॉल्ट अपना एक खुद का कॉमन सेंस है, नहीं जाना चाहिए, अपनी प्राइवेट डिटेल्स नहीं देनी चाहिए। अभी हम लोग एब्सोल्युटली राइट। के हम पूना में रहते हैं, मेरे सिस्टर की फ्लैट की सोसाइटी और बगल की सोसाइटी इतनी करीब है कि ऊपर वाला अगर म्यूजिक प्ले करता है तो हम लोग को नीचे तकलीफ होती है। एक बार हमारी उससे बहस भी हुई, हमने बोला आप आवाज कम कर दीजिए, तो वो मुझे बोलता है बंगलों में जाके रहो। मैंने बोला आप चले जाओ बंगलों में, जंगल में, जहाँ आवाज एको हो जाएगी, उधर हमको तकलीफ नहीं होगी। और तुम जो भजन सुन रहे हैं, मुझे दूसरे भजन सुनने हैं। आप अनूप जलोटा सुन रहे हो, मुझे अनुराधा पौडवाल के सुनने हैं, लेकिन आपकी आवाज से हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यू हैव टू रेज योर वॉइस, अनलेस यू वेरी डोंट रेज योर वॉइस यू विल हैव टू फेस हैरेसमेंट। एंड ये ऐसा होता है कि वंस यू टॉलरेट, देन दे एक्सपेक्ट योर टॉलरेंस पावर टू इंक्रीज, Okay, ma'am, सो we दे will विल be हैरेस यू taking मोर. up next question. Thank you, Mr. Mohammed. We'll come back to you, sir. थैंक Okay. Hello. There is a question by Mr. Vikrant Jindal. He is asking कि पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट और लीगल लाइसेंस की कॉपी मैनेजिंग कमेटी को देना है, डिमांड करती है तो देना चाहिए, इज इट वैलिड? या समटाइम्स दे डिमांड इट, सो यू हैव टू गिव इट. और पुलिस वेरिफिकेशन का तो अभी जो लेटेस्ट हमने सुना है, यू हैव टू जस्ट इंटीमेट द पुलिस. इतना ऐसा ये नहीं, पहले ऐसा था कि वेरिफिकेशन आने का के बाद ही टेनेंट अंदर जा सकता था, अभी तो आप अपना टेनेंसी राइट एक्सरसाइज कर सकते हो. पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया, बात खत्म हो गई, पुलिस अपना काम कर देती है. ज्यादा डिटेल में जैसे पहले था वैसा कुछ रहा नहीं अभी तो. बट यू हैव, आपकी तरफ से आप अपनी फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए. अगर
मैनेजिंग कमेटी बोलती है हमको एक कॉपी दे दो, तो उनको एक कॉपी दे के उनका एक काम हमेशा करना है कि जो भी आप मैनेजिंग कमेटी को डॉक्यूमेंट्स देंगे उसका अटेस्टेशन हमेशा एक्नॉलेजमेंट लेना है और एक कवरिंग लेटर के साथ देना है। प्लीज फाइंड एनक्लोज द लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट ऑफ दिस टेनेंट एंड द पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर योर रिकॉर्ड्स। एनी फर्दर ठीक है, चेंजेस वैसे इन भी दिस ये टेनेंसी? डिटेल्स बायलॉ में मेंशन्ड है कि जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं सोसाइटी को, तो इट इज एसेंशियल कि लिव एंड लाइसेंस के एग्रीमेंट की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंटीमेशन का रिपोर्ट जो आता है उसमें सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, जो पूछना है वो पुलिस वेरिफिकेशन के रिपोर्ट में अपने आप आ जाता है। आपके आ जाए। लिव एंड लाइसेंस के एग्रीमेंट में सारा कुछ डिटेल्स वगैरह आ जाता है। आपके जब वो फॉर्म नंबर 11 नंबर और 27 नंबर दोगे तो उसमें भी छोटे मोटे डिटेल्स आ जाते हैं। और वैसे भी सोसाइटी के अधिकार में नहीं है ये सब सारी चीजें पूछने का। कोई अपना रुबाब दिखाने के लिए या होशियारी दिखाने के लिए पूछे तो वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन अगर मैं किसी सोसाइटी में टेनेंट बन के जाता हूँ और मुझे अगर मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि आप कौन हो, तो मैं उल्टा मुझे ये पूछना चाहिए कि आप कौन हो मुझे ये सब पूछने वाला। मैं, मेरे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरा बंदिश बंधा हुआ है मेरे फ्लैट ओनर से, मेरे लैंडलॉर्ड से। आपसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आपको ये 100 रुपए का मेंबरशिप का फीस चाहिए था, ये दे दिया। मेरे लैंडलॉर्ड ने आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी को देने के लिए। तो ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि भाई इंटरव्यू लेना है, डॉक्यूमेंट देना है, वो ओनर का लाइबिलिटी है, टेनेंट का लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। यस। ओके, वी विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन। परेश राठौड़ का एक कमेंट है कि इफ ए पॉपुलेशन ऑफ 100 सोसाइटी ओनली 5% हैज सच कंप्लेंट्स, अदर लिव पीसफुली। ऑब्वियसली पीसफुली रहेगा ये सब जन। अगर जो लोग समझदार है वो शांति से रहेंगे, जिनको प्रॉब्लम करना है या बॉम्बे की भाषा में खुजली करना है तो वो शोर करेंगे। ये मतलब का इट इज एन एंटरटेनमेंट फॉर देम, प्लीज रिमेम्बर। किसी को उंगली करना, खुजली करना, शोर करना, कंप्लेंट करना, मस्ती करना, ये बॉम्बे का क्या, शहर में टाइम पास है। और उसको आप एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो। और आप भी करते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हो। अगर वो कर रहा है तो आप कम नहीं हो, आप भी करते हो। अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बड़ा सा लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन वो होता है। नैमिष भट्ट का एक प्रश्न है, एक होल्ड करिए, हम जरा चैट बॉक्स के क्वेश्चन ले लेते हैं मिस्टर रशीद, देन वी विल कम बैक। जस्ट होल्ड ऑन फॉर ओनली फ्यू मिनट्स ओनली प्लीज। नैमिष का साहब का क्वेश्चन है कि एमसी कीप्स पार्टी ऑन टेरेस टिल 12 AM रात के, मतलब व्हाट शुड बी द एक्शन। मैडम आप आंसर करेंगे इसका, क्रिमिनल एक्शन क्या बन सकता है? Yes, sir. Please, Mr. Nimish can complain to the police. Dial 100. Even you need not go to the police station. 100 डायल कीजिए। कभी कभी करेक्ट। 100 डायरेक्ट नहीं लगता है तो आप अपना कोड डाल दीजिए, जैसा बॉम्बे का 0 to 200 तो लग जाएगा। कंट्रोल रूम को जाता है, कंट्रोल रूम में वो लोग आपके डिटेल्स, फोन नंबर तो चला गया आपका, वो आपके डिटेल्स लेते हैं। दे यूजुअली आस्क फॉर योर नियरेस्ट एरिया लैंडमार्क, एग्जैक्टली कहाँ पे है, कोई लैंडमार्क बता दो। और फिर वो लोग क्या करते हैं, आपका नंबर पुलिस, जो पुलिस आने वाला रहता है, सिर्फ उसी से शेयर करते हैं। और आप चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन न दी जाए तो आप वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कंट्रोल रूम में, कि हमारा नंबर किसी से शेयर नहीं करना वरना वो मुझे परेशान करेंगे। हम ठीक है अक्सर ऐसा। मैडम, दोस्तों को ये बता दूं कि 100 नंबर के जो भी कॉल्स जाते हैं वो एनोनिमस होते हैं। आपका रिकॉर्ड आ जाएगा उधर, आपका मोबाइल दर्ज हो जाएगा उनके सिस्टम में, सब कुछ हो जाएगा। यस। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन पुलिस वाले नहीं देंगे। अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन डालोगे तो भी वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। नहीं दूसरा, देंगे, करेक्ट। अगर आप 100 नंबर डायल करते हो, टिपिकली मुंबई शहर की बात करता हूँ, 5-7 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। उनका जो गश्त वैन होता है या मोबाइल वैन होता है वो पहुंच जाता है। आने के बाद में देखेंगे कि 10 नहीं बजे की सर, ऊपर शो। अभी ये शायद महाराष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कॉमन कर दिया है, क्योंकि अगर पूना से भी हम डायल करते हैं 100 तो वो कॉल बॉम्बे को ही जा रहा है, कंट्रोल रूम को। बिकॉज आई हैव डायल ट्वाइस। ये हमारे बगल की 2 सोसाइटी छोड़ के एक शादी का फंक्शन था, रात को 12 बजे तक आवाज हो रही थी। तो हमने जब कंट्रोल रूम डायल किया तो दैट पुलिस टोल्ड मी कि आपका कॉल बॉम्बे के कंट्रोल रूम में आया है।
देयर मस्ट बी सम एरर, बट टिपिकली उनके डिविजन्स बने हुए हैं 100 नंबर्स के, तो दे गेट बाइफ्रिकेटेड। अगर Yes, आप correct. नासिक में भी 100 नंबर डायल करोगे और नासिक के अंदर आपका फोन है मोबाइल टावर में, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर नासिक डिवीजन जाता है। पर मैं इसको आपको एक चीज और भी बता दूं दोस्तों को, कि अगर पुलिस आती है 100 नंबर कंट्रोल रूम से और आप ये सब पाती है कि भाई सब शोर शराबा हो रहा है, खाना पीना का बर्तन तक उठा के लेकर जाएगी, म्यूजिक सिस्टम भी उठा के लेकर जाएगी, और अगर वो ऑर्गेनाइजर को टारगेट कर सके तो ऑर्गेनाइजर को भी टारगेट लेकर जाएंगे, और वो तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको अपना 1500 रुपए का फाइन नहीं मिल जाता पब्लिक न्यूसेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वी हैव completed the chat question. We will take in one-to-one questions. Mr. Rashid, you wanted to ask something? Yes, sir. Please. Yes, sir. सर नॉमिनेशन ये लीव एंड लाइसेंस में मेंबर आ गया, 100 रुपीज फीस भरा, तो क्या उसका नाम नॉमिनेशन फॉर्म इस पे शेयर सर्टिफिकेट भी लिखना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं आएगा? नहीं, आप नॉमिनल मेंबर एक 100 रुपए वाला नॉमिनल मेंबर है, उसका सोसाइटी के किसी भी रिकॉर्ड में कहीं पर भी कोई अर्जी दर्ज नहीं होती है। अभी तक हमारे रूल्स के हिसाब से नॉमिनल मेंबरशिप रजिस्टर का प्रोविजन नहीं किया हुआ है, पर जो ट्रांसफर जो फॉर्म्स आएंगे 27 नंबर और 11 नंबर और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये उस मेंबर ओनर मेंबर के फाइल में जाके पोस्ट होगी, उसके अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन सर, ये लीव एंड लाइसेंस को कार पार्किंग की अगर सोसाइटी में जगह नहीं है, बहुत कम है, तो क्या लीव एंड लाइसेंस को भी जगह देना जरूरी है, कार पार्किंग देना? सर जी, ऐसा है कि कार पार्किंग का जो इश्यू है, वो आप कार पार्किंग जो देते हो वो अपने ओरिजिनल मेंबर को देते हो, ठीक है? और ओरिजिनल मेंबर अपना खुद का कार पार्किंग अपना खुद का फ्लैट टेनेंट को देता है। अगर अपना खुद का फ्लैट टेनेंट को दे सकता है तो जो उसको पार्किंग अलॉटेड है वो भी टेनेंट को देगा। उसके पार्किंग का जो चार्जेस है वो तो ओनर दे ही रहा है, प्लस उस पर भी 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर ओनर को कोई कार पार्किंग दिया हुआ है तो वो कार पार्किंग अब मैं वापस ले लूंगा और टेनेंट को नहीं दूंगा करके। Anyway, thank you, Mr. Rashid, for joining the webinar. Thank you, sir. Thank you. Mr. Barar, yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. Good evening. Good evening. Madam, there were two questions I wanted to ask you. One is Section 34 that you had mentioned. Could you Yes, tell us sir. exactly what Section 34 entails? Yes, sir. One second, I'll just say that to you. Is Section 34 of the Indian Penal Code. The section says illegal, legally bound to do so. Read with Section 43. The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law. Okay? Or which furnishes ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit. Means whatever has been prohibited by law and which is illegal is illegal. Like playing loud music after 10 o'clock is illegal. And any person can take action against this aspect. Okay. So the person who is taking action, he is legally bound to do so against this illegal action. Okay. I will expand on it, Fatima ma'am. I'll expand on it. Yes, sir. थोड़ा टेक्निकलिटी है. I had thought of explaining this at a later date. कई बार क्या होता है कि जनरल बॉडी के मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है कि भाई हम लोग सारे लोग ये डिसाइड करते हैं, बरार साहब आपके लिए भी और मोहम्मद साहब आपके लिए भी, हम जनरल बॉडी में ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम बैचलर टेनेंट प्रोहिबिट करते हैं, हम बैचलर टेनेंट हम प्रोहिबिट करते हैं, और हम उस रेजोल्यूशन को नोट भी कर लेते, पास भी कर लेते. हर रेजोल्यूशन हैज टू बी प्रपोज्ड बाय समबडी एंड सेकेंडेड बाय समबडी. Okay, and those people who object to it, they are absolved of the crime under Section 34. Those who have participated in that resolution also become liable for 339. मैडम ने जो भी sections बताए IPC के, वो सारे liable हो जाते हैं. Plus,
जब टेनेंट अंदर आता है उसको रोका जाता है, तो कौन कौन रोक रहा है उसको? जैसे मैडम ने बताया, एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, एक सेक्रेटरी तो है ही है जो मेन ट्रस्टी है सोसाइटी का, उसने रोका, और जो भी कोई और रोकता है, और जो भी कोई और रोकता है, वो इस 39(339) के ऑफेंस के साथ में काफी लोग जब जुड़ जाते हैं एक ऑफेंस में, तो 34 नंबर वहां पे लागू हो जाता है। और अगर और कोई नहीं जुड़ता तो सिर्फ 34 नंबर लागू पड़ेगा। आई होप छोटी सी टेक्निकलिटी थी, मैंने एक्सप्लेन किया। इस पर और कोई प्रश्न है तो बताइए सर। I'll just finish my question. Yes, sir. Madam, I wanted to ask you, now the society, the society where my son stays, is levying 5,000 rupees as shifting charge. And because he refused to pay, they put the pressure on the owner, and now the owner is after my son कि भैया वो पैसे आपको देना पड़ेगा, वो मैनेजिंग कमेटी का ये रेजोल्यूशन है, एंड इफ यू डू नॉट डू दैट आई विल हैव टू आस्क यू टू विकेट। अब ऐसे धमकी मिलने के बाद आदमी तो अच्छा है, डर गया, उसने बोला अच्छा ठीक है पैसा ले लो, खत्म करो। But is this legal? It is illegal. You can file a complaint with the local police station there. Recourse is file a police extortion shifting charges कैसे ले सकते हो आप किसी से? वो इंसान शिफ्ट कर रहा है, वो अपना बोझा रेजोल्यूशन में पास किया हुआ है उन्होंने। नहीं, वो लोग ऐसे बेहुदा रेजोल्यूशन पास ही नहीं कर सकते। अगर आपको कानूनी कार्यवाही करनी है रेजोल्यूशन के ऊपर, तो जो ओनर है वो रेजोल्यूशन को चैलेंज करता है सेक्शन 91 MCS एक्ट में। और अगर आपको 50,000 रुपए की डिमांड आती है, एक्सटॉर्शन तो है ही है, साथ में इंटिमिडेशन भी बन जाता है, साथ में मिस रिप्रेजेंटेशन भी बन जाता है, साथ में मिसचीफ भी बन जाता है, साथ में न्यूसेंस का भी सेक्शन है, सब और IPC के अंडर कवर्ड है। बट हम हिम्मत नहीं करते ये सब सेक्शनों पे कंप्लेंट फाइल करने के लिए। जैसे बताया आपने कि वो सोसाइटी ओनर को बोलता है कि भाई आप भरो, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। ओनर बोलता है यार झंझट कौन ले, नेक्स्ट टेनेंट को भी प्रॉब्लम करेंगे तो दे देते हैं। पर अगर मेरे जैसा कोई टेनेंट होगा, या अगर मेरे जैसा कोई ओनर होगा, या फातिमा जैसे कोई ओनर होगा, तो वी विल डेफिनेटली मूव अहेड विद अफजल जैसे लोग होंगे, तो वी विल डेफिनेटली मूव अहेड विद द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस फॉर ऑल दिस न्यूसेंसेस दैट इज हैपनिंग। हमारा मुद्दा है सेमिनार में मोटिवेट करना कि आप ये कार्य करो, चुपचाप मत बैठो। But normally ये होता है कि the owner basically wants to side with the managing committee because he wants to live in a harmonious way कि भाई कल को कोई तकलीफ ना हो। तो the tenant suffers in this. Tenant बोलता है यार अभी मैं No sir, that is not harmony, that is fear. See, you're misunderstanding the dictionary meaning of harmony बोलो जो बोलो। See, no, we are splitting here. Basically the owner has wants to live with the society. Tenant आज है कल चला जाएगा, तो he does not want to create a situation जो बार बार सोसाइटी उसको तंग करे या मैनेजिंग कमेटी वाले तंग करे फॉर दिस रीजन और दैट रीजन। तो वो बोलता है यार भर दे, 5,000 रुपए ही है, दे देना, काय को तू झंझट कर रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी रॉन्ग बिकॉज़ व्हाई शुड ही? नो सर, इसके बाद क्या होगा, आपको हार्मनी के साथ रहना है, सोसाइटी के साथ, मैनेजिंग कमेटी के साथ, फेयर इनफ। वो टेनेंट जब बाहर जाएगा, ही विल पास ऑन द वर्ड, बाबा इधर जाके मत रहो, ये लोग कोई भी चार्जेस लेते हैं, शिफ्टिंग चार्जेस लो, ये चार्जेस लो। आपके फ्लैट की गलत मार्केटिंग हो जाती है, आपको अच्छा टेनेंट नहीं मिलता है, यू आर लूजिंग आउट ऑन मनी टू सेव दैट 2,000 and to spending that 2,000 wanting to live in harmony. You are losing out on your financial benefit. वो जाके he will spread out the word कि फलाना No, Madam, that is a social angle. I am saying कि if I am filing a complaint with the police, under what section does the police act, and does the police take any measures? And if they do not, then what do I do? The police has to take the measures. You write a letter to the registrar that the society is taking charges from you which are not applicable as per the Maharashtra Cooperative Societies Act, by telling that they have passed a resolution, and file a copy of that with the police.
And always remember that mostly what we have seen, that is, people only look at the cooperative society or forget the act, they only look at the bylaws. Nobody has taken the purview of the Indian Penal Code, which is behind the Maharashtra Cooperative Societies Act, which is the mirror of the Maharashtra Code, because any criminal activity done by the under the Maharashtra Cooperative Society Act by the managing committee, Indian IPC comes into the picture. The book, the law comes in forefront of the Maharashtra Cooperative Societies Act and stands in front of you. But there are many people, some are scared of going to the police station. As you said that you want to live in harmony. People say, okay, but you can afford it. You are paying that money and getting away. What about people who cannot pay? Because of you, then they are also facing that problem. So don't encourage. I can't afford to pay, but I'm forced to pay. No, so please. There is also an option. Happy paying. There is also an option of filing a private criminal complaint अगेंस्ट द सोसाइटी. अगर पुलिस स्टेशन बोलती है कि ठीक है मैं काम नहीं करता हूँ या आपका कंप्लेंट दर्ज नहीं करता हूँ, आप एनसी दर्ज कर दो, कम से कम यार कंप्लेंट लेटर दे दो. अगले दिन आप अपने एडवोकेट को लेके लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) के अंदर में आप सीआरपीसी के अंडर में एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हो. और वैसे भी बराड़ साहब आपको ये बता दो, 5,000 देने के बाद में भी शांति बनी रहेगी, नो डाउट. ठीक है ना, मन में खटकेगा, लेकिन क्रिमिनल कंप्लेंट करने के बाद में भी शांति में बहुत ज्यादा शांति बनी रहेगी सोसाइटी में, और हमेशा के लिए बनी रहेगी. आप ये भी सोच लीजिए, 5 तारीख को क्रिमिनल कंप्लेंट किया, 5,000 रुपए दे के शांति कर लिया. 6 तारीख को क्रिमिनल कंप्लेंट किया, भले 5 साल लगेंगे, 5 साल का भी छोड़ दीजिए, जहां पे 156(3) के अंदर में क्रिमिनल कंप्लेंट किया आपने, जहां से कोर्ट का सम्मन्स आया, उस दिन से और उसी घड़ी से आपके सोसाइटी में टोटल शांति बनी रहेगी. आई विल गारंटी यू दैट. आई विल 100% गारंटी यू कि जिस दिन मैनेजिंग कमेटी को समन्स आता है, कोर्ट में हाजिर हो, ये आपके ऊपर चार्ज है, तो सोसाइटी में अपार शांति हो जाएगी. और यही नहीं, बाकी जितनी भी बदतमीजियां हो रही हैं, बाकी जितनी भी धमकीबाजी हो रही है, जितने भी एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि 25,000 से ज्यादा प्रीमियम लूंगा मैं, वो भी अपने आप ही बंद हो जाएगा सर. आप ये सोचिए कि आपने पैसा खर्चा किया, ये तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है सर, कि मैं डर के रहना है कि मुझे शांति से रहना है. आपके एक कदम से आप ये भी सोच लीजिए कि बाकी जो 100 मेंबर है सोसाइटी के, वो भी आपका लोहा मान जाएंगे, मैनेजिंग कमेटी का लोहा नहीं मानेंगे. नेक्स्ट टाइम जो भी मैनेजिंग कमेटी आएगी वेल बिहेव्ड होएगी, सीधे पूछ वाले कुत्ते की तरह वेल बिहेव्ड रहेगी. अभी मेरे को वो मालूम पड़ गया, तो नाउ आई कैन एडवाइस माय सन टू फाइल अ क्रिमिनल केस. और आपको एक ये भी चीज बता दूं कि 5,000 रुपया भर दीजिए, 5,000 रुपया भर दीजिए और उसके अगले दिन कंप्लेंट फाइल करिए. वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए 5,000 भरते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, जो भी कुछ है, कोई भी एविडेंस आप पैदा करिए. नहीं, मैं उसका दो विटनेस को रिसीट लूंगा ना उनसे, रिसिप्ट ले लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए. हाँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए कि सोसाइटी के ऑफिस में कितने लोग हैं, आपको एविडेंस लगेगा सर. जी जी. मिस्टर मोहम्मद, आपका कुछ तजुर्बा इस संदर्भ में? हाँ, मैं बताऊंगा कि ये 156(3) अगर आप बता रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे केसेस में द कोर्ट गिव्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 202. यस सर. इन्वेस्टिगेशन, आप समझे. बट द फैक्ट रिमेन्स कि द मोमेंट आपने कोर्ट में केस फाइल किया या अगर उन पे एफआईआर होती है, तो यहाँ पे हम अगर थोड़ा घबराते हैं तो वो भी घबराते हैं कि भैया इनको छोड़ दो, क्योंकि क्या है कि ये केस भी बहुत लंबा चढ़ेगा और लॉयर को भी बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ेगी. और थर्ड चीज ये है कि कोई भी अगर एफआईआर दर्ज होता है तो फिर दे विल हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट टू गेट इट्स क्वश. तो जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा वो सोचेंगे. और एक आदमी नहीं सोचेगा सर, पूरी मैनेजिंग कमेटी सोचेगी. बिल्कुल. एक सिर्फ अफजल नहीं डरेगा, एक सिर्फ अफजल नहीं डरेगा और 10-12 कमेटी मेंबर भी डरेंगे. नहीं सर, सब जगह अफवाह फैल जाएगी कि ये चेयरमैन, ये बिल्डिंग की मैनेजिंग की कमेटी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है,
तो ऑटोमेटिकली उनका सेल्फ एस्टीम वही खत्म हो जाता है सर। जहाँ Very कुछ भी true. वो लोग इतना सीना तान के चलते हैं, अपने आप वो लोग थोड़े ये हो जाएंगे, मैं जैसे मोहन आपको सर ने एक बताया। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किसी का ये टेनेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो मैं उनके घर के करीब था, तो मैं वहां पे जाके रात के 2 बजे हस्बैंड घर पे है और वाइफ को एंट्री नहीं दे रहे थे। मैंने 100 नंबर डायल किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब पुलिस मैनेजिंग कमेटी के लोगों को बुलाई नीचे, सभी एक टाइम में सभी बाथरूम में नहा रहे थे। तो ये वो एक डर होता है, आप समझे। तो यू मस्ट ट्राई, क्योंकि क्या है कि जब तक आप एक्ट नहीं करोगे तो फिर आपको किसी चीज का कोई समाधान नहीं होगा। आप पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, तभी तो आप पास होगे ना। अगर आपने वैसे ही बैटल छोड़ दिया तो फिर पीपल आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। Okay. Miss Kashmira wanted to ask some question. यस सर। Thank you. Thank you, sir. Kashmira please madam, can you आप unmute अपना yourself? माइक्रोफोन अनम्यूट करिए ना। Can you hear me now? Can you hear Yes, me? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Good evening, Hemant sir. Good evening, Fatima madam. It was Yes, very ma'am. informative, and thank you very much. My Yeah, thank you, question is, Kashmir. Good evening. a member's written to the society, to committee members, that he wants to give his house as a guest house. Is that possible? As a guest house, To a corporate company and use it as a guest house. Okay, let me answer it, फातिमा मैम। sure, sir. मैम, जब आप सोसाइटी में फ्लैट लेते हो ना, तो आप एक डिक्लेरेशन फाइल करते हो। Yes, sir. फॉर्म नंबर 3 होता है कई सोसाइटी में बायलॉज में 4 नंबर हो जाता है। Okay. उसमें आप ऐसा लिखते हो कि भाई मैं इस सोसाइटी में किस पर्पस के लिए ये फ्लैट ले रहा हूँ करके, ठीक है ना। तो आप लीव एंड लाइसेंस पे दे सकते हो। उसमें एक परिवार वो पूरे कार्यकाल में, वो पूरे टेन्योर में, वो पूरे लीव एंड लाइसेंस के पीरियड में रहेगा। लेकिन अगर आप ये करोगे कि भाई 3 दिन के लिए ये आदमी आके रहेगा, 4 दिन के लिए वो आदमी आके रहेगा, तो वो कमर्शियल एक्टिविटी में आ जाती है। कमर्शियल एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। सोसाइटी का एनओसी ले लो, बीएमसी में चेंज ऑफ यूजर का एप्लीकेशन डाल दो, और फिर आप गेस्ट हाउस भी चला सकते हो और कई चीजें भी कर सकते हो। और वैसे भी इंडिया के कानून में 2-3 चीजों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है इस पर्टिकुलर गेस्ट हाउस के दायरे में से। जैसे एक आईटीडीसी का एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट करके एक स्कीम है, जिनमें आप अपने घर पे रहते रहते एक स्पेयर बेडरूम है अगर आपके पास में, तो आप किसी को भी वहां पे ठहरा सकते हो 1 या 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, और कानून वो अलाउ करता है। और आपकी सोसाइटी उस चीज को रोक नहीं सकती, बिकॉज दैट इज अ सेंट्रल एक्ट। ओके। Okay, sir. बट कमर्शियल ग्रेड के टेनेंट्स को रखना अलाउड नहीं है। कमर्शियल ग्रेड के टेनेंट को अगर आप रख भी लेते हो बीएमसी के परमिशन से, सोसाइटी के परमिशन से, तो आपको कमर्शियल ग्रेड का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, Okay, sir. पानी का चार्जेस भी देना है, और प्रॉपर्टी टैक्स। ये तीनों चीज कमर्शियल ग्रेड के लगेंगे, आपके कमर्शियल चार्जेस लग जाएंगे आपको। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. So Thank one you. more question I have, sir. It has been passed in a AGM that the members can be charged extra from the leave and licenses for parking, extra charges to be paid for parking, and for shifting charges also. This has been approved in the managing committee resolution also and in the AGM. Is this valid till, sir? Is it illegal what they have done? इट इज एब्सोल्युटली इलीगल। कम से कम बायलॉज में तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं Agreed, दिया sir. हुआ Yes, है sir. कि आप शिफ्टिंग चार्जेस लोगे। अभी आप कोई नया ओनर आता है तो आप उससे भी शिफ्टिंग चार्जेस लोगे। मेरा अगर गेस्ट आ गया, 4 गेस्ट आ गए, अब्रॉड से 4 गेस्ट आ गए, उनके 4 बैग है, वो लिफ्ट में चढ़ेंगे, तो उनसे भी कुछ ना कुछ चार्जेस लिया जाएगा कि भाई लिफ्ट का डैमेज चार्जेस देना है आपको। अभी आप 4 दिन के लिए रहने को आए तो अलग से दोगे। तो सोसाइटी है या सोसाइटी के नाम पे एक होटल है, इज इट एन होटल CHS लिमिटेड, कि किस चीज का कि आप अलग अलग शिफ्टिंग चार्जेस लोगे? वेटर को टिप नहीं दिया तो हमारे को शिफ्टिंग चार्जेस दो उसी के लीव में, ऐसा नहीं होता ना मैडम।
Right, sir. Thank you, sir. Thank अपने you. मन मर्जी का कानून बनाना सबको शौक है, Yeah, but है the ना? जैसे मैं managing अगर एक committee पेरेंट argues. हूँ, मैं एक So the अगर पेरेंट हूँ, तो मैं अपने घर में ना अपने मन मर्जी का कानून बनाऊंगा, अपनी बीवी के ऊपर भी बनाऊंगा, अपने भाई के ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी, और सही इवन बात अपने माँ बाप के ऊपर भी कानून बनाऊंगा, सही बात है ना? तो इसी तरह एक फितरत हो जाती है इंसान के अंदर Yes, कि sir. भाई टाइम पास करना है तो चलो कुछ भी कानून बनाते चले जाए। उन लोग क्या बोलते हैं, एजीएम ने पास किया तो तुम क्यों इतना बड़बड़ करता है, ऐसा बोलता है सर। एजीएम हैज अप्रूव्ड आल्सो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम करके। इट हाँ, हैज बीन तो पास जैसे द अभी हमने एजीएम। डिस्कस किया, आपके पास दो यस तीन सर, ऑप्शन थैंक है, यू। आप यस कंज्यूमर सर, कोर्ट में जाओ, थैंक कोऑपरेटिव यू कोर्ट सर। में जाओ, क्रिमिनल कोर्ट में जाओ। जब ये सब कोर्टों के ऑर्डर आ जाएंगे तो ये एजीएम और जनरल बॉडी के जो रिजोल्यूशन है ये सीधा कचरे की पेटी में घुस जाएंगे। थैंक यू सर। वेलकम मैम। थैंक यू। Anybody else having any other questions before we conclude for today, please? Hemant sir, just one point. If in the subsequent webinar or this thing, if you can have a discussion on the MahaRERA Act 2016, MahaRERA Act जो लागू हुआ है, if you can only have a seminar on that, it will be a very big help. A lot of people are facing problems with issues. बराड़ साहब, ऐसा है कि we conduct webinars only and only related to CHS issues, cooperative housing societies. RERA no doubt comes into picture, but अब जब CHS issues करते हैं तो उससे related issues क्या है? BMC है, MRTP है, DCR rules है, फायर एक्ट है, IPC लागू पड़ता है सोसाइटियों में, इनकम टैक्स लागू पड़ता है, GST लागू पड़ता है, तो ये सब हम टॉपिक्स पे वेबिनार करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली जैसे आपने बताया रेरा, वी विल डेफिनेटली डू इट सर। हमें अप्रोप्रिएट स्पीकर मिल जाए इस चीज, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। जी जी, दिस इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड एंड लेट मी से इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। तो अगर आपके आप या आपके कोई कांटेक्ट को जो रेरा के स्पेशलिस्ट हैं और जो बात कर सकते हैं, तो प्लीज गिव माय नंबर, आई विल अरेंज फॉर द सेम। दैट इज नॉट एन इशू, वी विल डू इट सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Fatima madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, if there are no other questions, then we will conclude for today. Thank you, sir. Sure, Thank sir. you, sir. Thank you very much. Good night. Good night, sir. Thank you. So now we will conclude today's webinar with the permission of our participant friends. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, Thank you, and sir. bye-bye. Wish you Bye-bye. Thank you, sir. Thank you very much.